Hello students, I am Mrs. Preeti Singh, Assistant Professor in the Department of B.Ed at the Graduate School College for Women, Jamshedpur. Students, today I will continue the topic personality from B.Ed first semester, paper 5, Understanding Disciplines and Subjects. Under this topic personality, today we will discuss about the characteristics of personality. Characteristics is personality is something unique and specific. व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है. Each and every person has specific characteristics for making their adjustment with the environment. However, the uniqueness of an individual's personality does not mean he has nothing to share with others in terms of traits and characteristics of personality. He may have some certain characteristics which he may share with others, and at the same time many others which are unique to him. कोई भी व्यक्ति चाहे वह समरूप यमज यानी आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों न हो, किसी भी समय बिल्कुल एक समान व्यवहार नहीं करते. हम में से प्रत्येक अपने ढंग से अपना समायोजन करता है और इस तरह हर एक का व्यक्तित्व अपने आप में एक अद्भुत और अनूठी वस्तु होती है. सेकेंड वन, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन. व्यक्तित्व में व्यक्ति के बारे में सब कुछ निहित होता है. द पर्सनैलिटी इज ऑल what a person has about him. Therefore, it includes all the behavior patterns, that is cognitive and affective. It covers not only the conscious activities but goes deeper into the semi-conscious and unconscious also. व्यक्तित्व वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति अपने पास रखता है. इसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सम्मिलित हैं तथा इसका क्षेत्र केवल चेतन अवस्था में किए गए व्यवहार तक ही नहीं होता बल्कि अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला हुआ होता है. The third one is personality is not static. यानी व्यक्तित्व जड़ नहीं बल्कि गतिशील और निरंतर परिवर्तित एवं परमार्जित होने वाली वस्तु है. Though the personality of an individual remains stable to a large extent, it cannot be said that it is static. It is dynamic and continuously in the process of change and modification. As we know that the personality is everything that a person has about him. It gives him all that he needed for his unique adjustment to his environment, and for this adjustment he has to be in continuous changing process. अपने समायोजन के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे वह सब कुछ देता है. समायोजन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से लेकर आखिरी सांस तक वह समायोजन के लिए संघर्षरत रहता है और इस संघर्ष के लिए उसे अपने व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों में आवश्यक परिवर्तन लाने होते हैं. इस तरह व्यक्तित्व स्थिर न होकर गतिशील एवं परिवर्तनशील है. The next one is the personality is the product of heredity and environment. व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है. Both the heredity and the environment contribute significantly towards the development of the individual's personality. A child is not born with a personality but develops one as a result of continuous interaction with his environment. Therefore, not only heredity but also factors like constitutional makeup, social and cultural influences as well as experience and training etc. all affect one's personality. व्यक्तित्व के
विकास में मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्ष आते हैं और इन दोनों का विकास उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। वंशानुक्रम यह निश्चित करता है कि मनुष्य क्या है, बलिष्ठ या निर्बल, लंबा या छोटा, गोरा या काला, सुंदर या कुरूप, अधिक बुद्धि वाला या कम बुद्धि वाला आदि। और पर्यावरण यह निश्चित करता है कि मनुष्य क्या रखता है, ज्ञान या अज्ञान, योग्यता या अयोग्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति या कमजोर इच्छा शक्ति, सामाजिकता या असामाजिकता, समायोजन या असमायोजन इत्यादि। Next one is learning and experience contributes the development of one's personality। यानी अधिगम और अनुभवों का अर्जन दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में पूरी तरह से सहायक होते हैं। Learning and acquisition of experiences both contribute towards the growth and development of personality, as every personality is the end product of this process of learning and acquisition। जैसा कि स्पष्ट है कि सीखने और अर्जन संबंधी प्रक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अतः सीखना यानी अधिगम और अनुभवों का अर्जन दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में पूरी तरह से सहायक होते हैं। Next characteristic is individuals are different not only among themselves but also within themselves। व्यक्ति एक दूसरे से ही अलग नहीं होते, वरन वे अपने आप में भी अपने से अलग होते हैं। उनके समायोजन का संघर्ष बाह्य वातावरण से तो चलता ही है, साथ साथ उनके अपने अंतर्मन में भी उनके एडजस्टमेंट की समस्या के साथ संघर्ष चलता ही रहता है। नेक्स्ट, पर्सनालिटी कंसिस्ट्स ऑफ फीलिंग, थॉट्स, कॉग्निशंस एंड विजिबल बिहेवियर। व्यक्तित्व में किसी भी व्यक्ति के अनुभव, विचार, ज्ञान तथा उसके द्वारा वातावरण में किए गए प्रत्यक्ष व्यवहार को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, when individuals act or react, they do so as total individuals and not as part of their selves। कोई भी व्यक्ति जब क्रिया या प्रतिक्रिया करता है तो वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रदर्शन उस क्रिया एवं प्रतिक्रिया के द्वारा करता है, न कि अपने व्यक्तित्व के किसी एक भाग को ही अपने व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करता है। Next, the visible behavior of an individual shows a consistency that spreads over different situations with different people and at different times। विभिन्न सिचुएशन में तथा विभिन्न लोगों पर और विभिन्न समय में भी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष व्यवहार होता है वह अनुकूलन लिए हुए होता है। Next, personality has a biological base but it is shaped by the environment। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार उसकी जैविक व्यवस्था होती यानी वंशानुक्रम होता है, परंतु उसके व्यवहार में उसके पर्यावरण का अंश होता है। अर्थात व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का योग नहीं अपितु गुणनफल होता है। अर्थात मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है जिसके आधार पर उसका विकास होता है तथा वह किसी प्रकार के विकास के लिए इन शक्तियों के साथ बाहरी प्रयत्न की आवश्यकता अनुभव करता है। यानी मनुष्य सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति लेकर पैदा तो होता है, परंतु उनमें सामाजिकता का विकास तभी होता है जब उसे सामाजिक पर्यावरण में रखा जाए, अन्य व्यक्तियों के साथ उनका अंतःक्रिया हो। इसमें से एक के भी अभाव में व्यक्ति में सामाजिकता की भावना का विकास नहीं हो सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व का आधार वंशानुक्रम है, परंतु उसका विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है।
And the last one for today's lecture is the behavior is also a characteristic of personality. यानी व्यक्तित्व का व्यवहार भी व्यक्तित्व की एक विशेषता के अंतर्गत आता है. Learners, this is all about the characteristics of a personality. Stay safe and healthy and wait for my new lecture.